Ladies first principal. I'm 23 years old, BSc first year student. This case is an absolute false case. मेरे को मेरे गांव से लेके आए, मेरी जब्ती मोबाइल की बनाई, मेरे घर के मोटरसाइकिल को आपने जब्त किया. हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड इन द क्राइम इज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन लॉर्डशिप. इनका कहना आप साथ में थे और आपने रोका नहीं. हम साथ में कैसे थे, आप कैसे बता रहे हैं? यह कहना सही कि आरोपी की शिनाख्ती कार्रवाई थाना कोतवाली सीधी में ही पुलिस के द्वारा कराई गई थी. इसने जो प्लान बनाया, मैंने अभी जो था लॉर्डशिप अतुल सिंह, उसने प्लान बना के तो हमें बुलाया था लॉर्डशिप. सीधी से कोई गाड़ी बुक करके लेके चलते हैं, रास्ते में ड्राइवर की हत्या करके गाड़ी को बेचकर पैसा कमाते हैं. ये गाड़ी लेके गए, फिर रास्ते में हमको फोन किया और बुलाया कि हमें ड्राइवर की आवश्यकता है, अगर आप खाली हो तो चलो. तो मैं आया था, रास्ते में मुझे मिले हैं लॉर्डशिप. ये लास्ट सीन में आ गए ना आप, फिर अगर रास्ते में पहुंच गए तो. यस मैडम. लॉर्डशिप आई एम इन 48.1. 48.2 लॉर्डशिप. बाकी लोग 48.2 में. एक इसमें 48 में भी है सस्पेंशन. कोई नहीं आ रहा है. आप दोनों तैयार हैं? चलिए आप लोग बहस करिए. मैडम, यू आर फॉर राजेश सिंह. यस लॉर्डशिप. यू आर फॉर महेश जायसवाल जी. Yes. Who will argue first? Ladies first principal. Yes. You are not arguing, Mr. Dutt. Well, let her begin, sir. I'll follow her, sir. Yes, we have already. I'll follow her today. We have applied ladies Yes, first principle. I'll follow her, Maharaj. Yes. I'll follow her today. Atul, Rajesh, Mahesh. Lordship, Yes. may it please your lordships. Lordship, the conviction is under section 364, 392 read with 34, 302 read with 34, and 201 read with 34, Lordship. And for 302, it is life imprisonment. Now, Lordship, what I will try to demonstrate before this honorable court is that this case is an absolute false case, a tailor-made case, Lordship, by the prosecution to implicate us, despite of the fact that the deceased has not been identified. Lordship, what was the story? The entire case is based on circumstantial evidence. And also, they have tried to put the theory of last seen together, which I will demonstrate is absolutely incorrect. And the conviction of these persons, Rajesh Singh, Lordship, is not. You just tell us the prosecution story. Yes, Lordship. The prosecution story, Lordship, is that PW6 Gangaram has lodged a missing report on 19/7/2014 of deceased Rohini Prasad, Lordship. If it is convenient, read. I will read para 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19/7/2014 को 5:47 थाना कोतवाली सीधी गंगाराम चौबे PW6 द्वारा दी गई गुम इंसान की लिखित सूचना प्रदर्श P6 के आधार पर साना क्रमांक 10 पर गुम इंसान का आशय लेख किया गया कि गंगाराम चौबे का चचेरा भाई रोहिणी प्रसाद चौबे, पिता राम सखा चौबे, निवासी अमरवाड़ा जो गांव, शिवेंद्र सिंह की बुलेरो गाड़ी इज द ड्राइवर, शिवेंद्र सिंह इज द ओनर ऑफ द बुलेरो गाड़ी का चालक होकर दिनांक 17/7/2014 को सुबह घर से गाड़ी लेकर सीधी आया था एवं शाम को 7 बजे अपनी पत्नी को फोन से बताया कि वह सीधी बनिया कॉलोनी से बुकिंग लेकर मऊगंज जा रहा है, रात को घर नहीं आएगा. उसके बाद से रोहिणी प्रसाद का कोई पता नहीं चला और इस पे मोबाइल नंबर बंद आ रहा है. उक्त गुम इंसान की सूचना पता तलाश हेतु ASI बागरी को दी गई. ASI बागरी, Lordship, was assigned with this particular task. Now, Lordship, after 19th, on 20th, the body of the deceased Rohini Prasad, said to be the body of the deceased Rohini Prasad, was recovered Exhibit P27. Unnatural death में इसको लॉन्च किया गया, Lordship. Now this has been identified, the body has been identified by PW5, PW7 and PW10. PW5 was the first person who has seen a dead body lying in the area, Lordship. PW5, Lordship.
I will read PW5 to demonstrate that what he has seen and what he has reported. शिवेंद्र की बोलेरो कार थी, ये ड्राइवर थे और ये जब गए हैं लॉर्डशिप तो he was missing and 20th को first time PW5 has seen. They were all searching for it. It is the state of the case of the prosecution itself that they all were searching for their car and the driver. Now, how I will be implicated? What circumstances, Lordship? I will demonstrate. No circumstance against me to implicate me. PW5 is Nagendra Singh, Lordship. I will read, Lordship. Is there any doubt about identification? Yes, Lordship. Yes. No DNA was conducted. No DNA was conducted. Who identified the body? The brother has identified. Wife was available. Neelam was available, but brother PW10 has identified. He was not recognizable, and all of them has recognized by the color of the shirt. And then there is specific, Lordship, we have specifically raised. My Lord will see in the judgment at paragraph number, as far as identification is concerned, paragraph number 22. अभियुक्त पक्ष का यह तर्क रहा है कि सोहागी पहाड़ी की पुलिया के नीचे पाई गई लाश मृतक रोहिणी प्रसाद की होने के संबंध में फीमर हड्डी को एफएसएल भेजकर डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया। अभियुक्त पक्ष का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मृतक के परिवार सदस्य अनुसुईया प्रसाद, Lordship, I will read अनुसुईया प्रसाद, that is PW10, तथा आसपास की पहचान करने वाले शिवेंद्र और नागेंद्र राजबहादुर ने मृतक के कपड़े, पैंट व शर्ट के आधार पर रोहिणी प्रसाद की लाश को पहचान साबित होना पाया गया है। PW5 has, when he has seen it for the first time, he has said that since we are looking for someone and there is a dead body found, it may be, मुझे ऐसा लगा कि ये रोहिणी प्रसाद की है। Then PW10, who is not residing with, PW10, Lordship, is the brother. He is not residing with the deceased. He was not residing. It was Neelam, Lordship, and available, very much available. But the prosecution did not examine her. PW10 का कहना है, Lordship, अनुसुईया। Yes. पैराग्राफ नंबर 6, लाश पर जो शर्ट व पैंट पहने हुआ था उसे रोहिणी की लाश होना पहचाना था। स्वतः कहा वैसे लाश देखने में पहचान में नहीं आ रही थी। लॉर्डशिप, पैराग्राफ नंबर 10, बिकॉज ऑफ द इट वाज ऑलरेडी डिकम्पोज्ड बॉडी, लॉर्डशिप, में नहीं आ रही थी। वह किसकी थी ये नहीं बता सकते। पैराग्राफ 10 एंड देन पैराग्राफ 13, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। The best person who could have identified was Neelam, the wife of the deceased. She has not been examined by the prosecution. Now, after this, Lordship, what had happened when the missing report was filed on 19/7/2014? At that time only, the investigation started, and they went to the driver's spot, Lordship, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंस बताया गया है, वहां पर जाके इन लोग ने गवाहों के बयान लिए, एंड दिस वाज द ट्रू स्टोरी व्हिच कुड हैव कम आउट, whereas the prosecution did not bring the story. My lord will see PW16, Lordship, the investigating officer, paragraph number 17. Yes. Yes. लॉर्डशिप, ASI बागरी ने गुमशुदगी जांच के संबंध में किन किन साक्षियों के कथन दिए हैं वह डायरी देखकर बता सकता हूं। मैं सम्राट चौक, लॉर्डशिप, प्लेस ऑफ इंसिडेंस इज सम्राट चौक, फ्रॉम वेयर दिस बोलेरो वाज बुक्ड, alleged to be booked for Mauganj. Now, Samrat Chowk is not the place of incidence. If this is the prosecution, the dead body was found at Mauganj. So, where the dead body was found would be the place of incidence, or between the place, that would be the place of incident, or if Samrat Chowk is the place of incidence, nothing has happened at Samrat Chowk. तो सम्राट चौक के पर
तत्संबंध में उपस्थित भीड़ से गुमशुदगी जांच बाबत पूछताछ किया था। दैट टाइम दे हैड इन्वेस्टिगेटेड। थाना प्रभारी की हैसियत से गुमशुदगी की जांच एएसआई बागरी ने करने के दौरान मैं भी वहां जाकर अन्य ड्राइवरों से पूछताछ किया था। नाउ द ड्राइवर्स हु हैव कम ओवर हियर एंड मेड अप अ स्टोरी ऑन 23rd after 23rd when they were first time examined, they were already examined on 19th of July when the person had the deceased had gone missing. वहां जाकर अन्य ड्राइवरों से पूछताछ किया था, लेकिन कथन एएसआई बागरी ने लेख किया था। ये जो कथन है, this was the true story, what had happened to the deceased, where did he go, यह कहना लॉर्डशिप, लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ 17, यह कहना सही है कि जांच के कथन चालान के साथ संलग्न नहीं है। This was the story, lordship, which could have come up by the prosecution, which could have demonstrated what was the real story. अब यहाँ से they have made up a story, lordship. When the dead body was found on, was otherwise homicidal in nature. that was homicidal, lordship. It has come in the Autopsy report. yes that it was There's homicidal. no quarrel on that. No, lordship. Only But identification. identification. And the trial court has also said that allegation against me is that you were present there, and how that is also not demonstrated. The main accused are Atul and Sajan Singh, Atul and Mukesh. Atul, Mukesh are the main accused person who the trial court has held that they have committed the crime, but you were there with them and you did not stop, and therefore I have been implicated. I will read paragraph of the judgment, lordship, page number 47. घटना में केस समय शेष अभियुक्तगण अभियुक्त अतुल सिंह के साथ ही थे, परंतु उनके द्वारा अतुल सिंह को उक्त कृत्य करने से रोकने का प्रयास नहीं किया। अभियुक्त अतुल सिंह द्वारा जब मृतक की हत्या की गई, उसके पश्चात शेष अभियुक्तगण द्वारा शव को छिपाने में अभियुक्त अतुल सिंह की सहायता की गई। इसके अतिरिक्त अभियुक्त अतुल सिंह द्वारा मृतक रोहिणी प्रसाद की हत्या की जानकारी तथा शेष अभियुक्तगण को भी और उनके द्वारा कृत्य की जाने की जानकारी किसी अन्य को न देना तथा किसी थाने पर शिकायत न करना, यह दर्शाता है कि वे अतुल सिंह द्वारा की गई रोहिणी प्रसाद की हत्या का साक्ष्य विलोप करने में सहायता कर रहे थे। वी वर देयर। हाउ वी वर देयर? जब्ती बनाई है लॉर्डशिप, हमारे पास दो चीजों की जब्ती बनाई है। फर्स्ट फ्रॉम राकेश सिंह इज मोबाइल, जिसमें कुछ भी दे हैव नॉट कम आउट विद दैट हाउ दिस मोबाइल कैन बी लिंक्ड विद द क्राइम। सेकंड जो हमसे जब्ती बनाई गई है लॉर्डशिप, दैट इज ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, हाउ इट इज यूज्ड इन द क्राइम, द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट सेड एनीथिंग। हमें हमारे घर से which I am putting up in different गांव, मेरे को मेरे गांव से लेके आए, मेरी जब्ती मोबाइल की बनाई, मेरे घर की मोटरसाइकिल को आपने जब्त किया। How these things are used in the crime has not been explained by the prosecution, lordship. On what basis you were held guilty? Lordship, I am held guilty on the basis of the witness PW3 and 4, which have said वो ड्राइवर्स हैं। तो पहले 19 तारीख को तो उनका बयान दिया था, 19 तारीख का बयान विलोप हो गया जब ड्राइवर से पूछताछ की। इट अपीयर्स दैट द ओनर एंड द ड्राइवर्स दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड। अब इन ड्राइवर्स का ये कहना है कि 4 लोग बुकिंग के लिए आए थे। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। वन ड्राइवर हैज सेड कि इन 3 लोग आए थे और इनने रोहिणी प्रसाद को 200 रुपए देके टैक्सी बुक कराई थी, बोलेरो कार बुक कराई थी टू गो टू मऊगंज। The other PW4 is saying that ये मेरे पास आए थे, ये चारों लोग मेरे पास आए थे PW4 के पास और उसको 200 रुपए देके गए थे। Major contradiction is there in the story of the drivers which is recorded, which was, and they total contradictory what they had given statement in the 161 statement. यहाँ पर they are saying only on the basis of these statement of these 2 persons कि आप यहाँ पर बुक करने आए थे 3 बजे, आप 3 बजे यहाँ पर बुक करने आए थे, आपने रोहिणी प्रसाद को, वन इज सेइंग दैट आपने रोहिणी प्रसाद को पैसे दिए थे, दूसरे ने कहा कि आपने मेरे को पैसे दिए थे फॉर बुकिंग दिस पर्टिकुलर। हु वेंट, हु वर नॉट पर्सन्स, द ट्रायल कोर्ट हैज सेड दैट ऑल द बर्डन इज ऑन द एक्यूज्ड पर्सन, दैट दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो वहां से कहाँ चले गए या वो कहाँ से चले गए। ऑल द बर्डन द प्रोसिक्यूशन हैज पुट एंड द ट्रायल कोर्ट हैज पुट ऑन अस टू डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ वी विल। No circumstance, no chain that is complete, lordship, which can implicate us in this crime, lordship. That's all. Yes. Next. Lordship, judgments में बाद में
बता दीजिए सही टाइम। Lordship, latest judgment of 2023, my lord, of Rahul versus State of Delhi, page number 83 SCC, 2023 volume 1, पेज, page 83, Lordship. व्हाट इज द रेशियो? Ratio is, Lordship, as far as the recovery is concerned. Only the recovery part, because on the basis of the memorandum and on the basis of the statement, I have been implicated. Now, only for the recovery part, Lordship, although it is a settled principle, only for the purposes of recovery, the memorandum is acceptable, for no other. And Lordship, this is the leading case also for the purposes of circumstantial evidence. Although it is a settled principle, but it has been reiterated that circumstantial evidence, when it can be, the circumstantial evidence can be used for the conviction. In the conviction दिया है Lordship for 364, kidnapping. Kidnapping का जो offense है Lordship, that will not be met out at all. Kidnapping are of two types: kidnapping from India and kidnapping from local guardian. So kidnapping from India is when you take the person somewhere else to other country beyond the limits of India. And kidnapping from the local guardian, both the sections are not applicable on me. How did I kidnap Rohini Prasad or the deceased person? So that is also, that section is basic section when they said that we have been kidnapped is not applicable, Lordship. 360, 361, Lordship, if I may read. मर्डर का तो हमारे ऊपर किया ही नहीं है, हम सिर्फ साथ में थे. इनका कहना आप साथ में थे और आपने रोका नहीं. हम साथ में कैसे थे, आप कैसे बता रहे हैं? Kidnapping from India, whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. And kidnapping from lawful guardian, तो ये minor का kidnapping है. Both these sections are not applicable. So as far as circumstantial evidence of Rahul versus State of Delhi, Lordship, it is well to remember, Lordship, paragraph number 17. It is well to remember that in cases where the evidence is a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be, in the first instance, fully established. And all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency that they should be such as to exclude every other hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused, and it must be such as to show that within all human probability, the act must have been done by the accused himself. Lordship, then again, the close analysis, there are 3 points that have been established. The most important is that it is very important for the court indicated in the circumstances concerned, must or should and not may be established. There is only that there is not only a grammatical. Panchashil principle, 79 Supreme Court. Yes, Lordship. Yes. Has been relied on that only. That's all, madam. This is one, Lordship. I will also demonstrate that PW 3 and 4, they are wholly unreliable witnesses and should not be relied by the prosecution. For that, I am citing the judgment of Witnesses, Lordship, 2022, volume 7, SCC, page 157. That there are 3 types of witnesses: reliable, wholly unreliable, partly reliable, and partly unreliable. And in my case, the category is of wholly unreliable because in this particular case, paragraph number 3, they started running from a live. If the court finds, paragraph number 13, Lordship, they have given the category of witnesses. And if the court finds that the witness is wholly unreliable, there should be no difficulty in as much as conviction nor acquittal can be based on wholly unreliable testimony of such witness. It is only in the 3rd category of witnesses that it means circumspection. Now, in my case, Lordship, PW 3 and 4 will also be necessary to be read, Lordship, because it is only on this
that they are basing my conviction on. Yes. The PW 2 and 3. 2, 3 and 4. Yes, 3 and 4. लॉर्डशिप, ये अजीत सिंह चौहान जो ड्राइवर है, जो सम्राट चौक पे ही इज अ ड्राइवर एंड अवेलेबल. 19th को जब इनके बयान हुए थे, दैट इज नॉट ब्रॉट. नाउ 20th द डेड बॉडी हैज बीन फाउंड, आइडेंटिफाइड आल्सो ऑन 20th. FIR is also lodged against unknown person. That एक डेड बॉडी मिली है. The FIR is also very important, lordship, against unknown person. पहले there was 174 में unnatural death. Thereafter one FIR against unknown person. At that time, these persons were very well available to demonstrate that how and where this deceased Rohini Prasad was there. They did not come forward. Now, when the matter is trying to be manipulated by the prosecution, they are coming forward. और इनका कहना है कि दिन में 2 बजे PW2 दिन में 2 बजे के लगभग न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण अतुल, राजेश और साजन की ओर इशारा करते हुए. पैराग्राफ नंबर 2, लॉर्डशिप. Yes, kindly read it again. Yes. लॉर्डशिप, 3rd लाइन. दिन में 2 बजे लगभग न्यायालय में उपस्थित अतुल, राजेश और साजन की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह लोग वहां पर रोहिणी प्रसाद से मऊगंज जाने के लिए वाहन बुक करने के तथा 200 रुपए एडवांस रोहिणी प्रसाद को देकर कहकर गए थे शाम को आएंगे. तो ये जो पैसे दिए थे 200 रुपए, ये रोहिणी प्रसाद को दिए थे. दिस इज अजीत सिंह इज सेइंग. काइंडली सी नाउ PW3. काइंडली सी PW3 corroborated by PW4. पैराग्राफ नंबर 2, लॉर्डशिप. लगभग 7 माह पुरानी बात है. मैं सम्राट चौक के स्थित पर, ये भी ड्राइवर ही है लॉर्डशिप. उस समय 3 बजे आरोपी साजन गाड़ी बुक करने मेरे पास आया था ओनली. उसने बोला था कि देवस्थान में जाना है. मैंने उससे कहा था खर्च लगेगा, तो बताया कि 200 रुपए अग्रिम देकर चला गया था. सो ही हैज गिवन, ओनली साजन सिंह हैज गिवन 200 एडवांस टू द ड्राइवर PW Rajbahor. This has been confirmed by PW4, lordship. Kindly see PW4. PW4 ने भी यही कहा है लॉर्डशिप कि ये दोपहर के समय की बात है, बुक करने आए थे. उस समय मैं, अजीत सिंह, राजबहोर और बोलेरो कार में बैठे हुए थे. ये तीनों आकर बोले कि मऊगंज जाना है. तब राजबहोर ने उससे कहा कि 1500 रुपए के 200 रुपए अग्रिम देकर चले गए. सो लॉर्डशिप, जो राजबहोर PW3 है, उसको पैसे देकर इन लोग गए थे. दिस इज मेजर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ PW3 and 4. जो PW1 कह रहा है कि ये आप डिसीज्ड को देके गए थे. ऑल दीज पीपल आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, लॉर्डशिप, एंड दे हैव, दैट इज कम इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल्सो, because they have not stated all these things in the 161 statement. When confronted with the question that why did you say something else in 161 and you are saying something over here, so they have said, lordship, PW2 paragraph number 9, lordship, पूरा इनका जो ये कहना है कि ये आए थे और ये हुआ था. यदि प्रदर्श D1 में उपरोक्त तथ्य नहीं लिखे हैं तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता हूं. ऐसा नहीं हुआ कि तीनों लड़के शाम को वाहन बुक करने आए थे और ये वाली बात मुझे बताई थी. अगर ये पुलिस ने नहीं लिखी तो मैं कारण नहीं बता सकता हूं. यह बात सही है कि मैं आरोपी अतुल, राजेश और साजन को घटना दिनांक के पूर्ण से नहीं जानता था. This is after 1 month they have come for recognition, lordship, and so also this is not that much relevant. PW2 की क्रॉस एग्जामिनेशन में आया कि पुलिस ने हमारे सामने बुला के शिनाख्ती कराई थी. They have all denied the statement of 161 statement, lordship. Then, lordship, I am also for this purposes that these witnesses should be declared absolutely unreliable. And there is no circumstance at all, lordship, which will implicate me in the crime. The trial court has come out with nothing. They have just said that you were there and you did not stop Atul.
because their mobile location were found on nearby, but you were there. How I was there? What is the chain? What is the circumstance? And how is it complete to point towards my guilt is not established by the prosecution, Lordship. This is established principle regarding recovery, Lordship, which I was quoting, but it is already, my Lord knows, is aware of this. That's All all. these things. Yes, Lordship. Who will second? Mr. Dutt. Lordship, also one last thing, that I'm in jail since July 2014. No previous application decided on merit? No, Lordship, this is the first. Same with Mr. Dutt's case? My lords, all first application. First application. The period that they have served till date, my lord, is 9 years, 3 months, 6 days. Actual. No, that would including the actual is 8 years. किसकी? किसकी? महेश की सेकंड बांटा प्रोसेस को Mr. Dutt, you are appearing for I pay for Atul Singh. सुखियान सिंह yes. A total period that he has served is 8 years, 8 months, and 8 years, 8 months, sir, that he served. Actual. Yes. The prosecution case has been called out in paragraph number 2, my lords, which has been read by my learned friend. I'll invite your lordship to paragraph number 79 of the judgment, where now this is a case which is based upon circumstantial evidence and there is no direct evidence. The circumstances have been dealt in paragraph number 79. प्रकरण में निम्न परिस्थितियां संदेह के बारे प्रमाणित हुई है। सुहागी पहाड़ी पुलिया के नीचे पाई गई सड़ी गली लाश, कपड़ों के आधार पर मृतक के परिवार व पहचान के सदस्य द्वारा बोलेरो वाहन क्रमांक MP 53TF 0720 का चालक मृतक रोहिणी प्रसाद चौबे की होना प्रमाणित हुआ है। मृतक रोहिणी प्रसाद चौबे जीवित अवस्था में दिनांक 17/7/14 को दिन के करीब 2 बजे आरोपी अतुल राजेश सज्जन सिंह के साथ में मऊगंज जाने के लिए टैक्सी स्टैंड पर बात करने के उपरांत शाम 6 बजे अंतिम बार टैक्सी स्टैंड में उक्त अभियुक्त गण के साथ वहां लेकर जाना देखा गया, जिसका अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जब अभियुक्तों के साथ मृतक रोहिणी प्रसाद को अंतिम बार देखेगा, उसके 3 दिन पश्चात 30/7/14 को शाम के समय सुहागी पहाड़ी पर पुलिया के नीचे लाश पाई गई। अभियुक्त से जब्त मृतक रोहिणी प्रसाद की घड़ी, नग लगी चांदी की अंगूठी, मोबाइल एवं मृतक द्वारा चलाए जाने वाला वाहन बोलेरो MP 20TS कानपुर में पाए जाने तथा मृतक के मोबाइल नंबर की लोकेशन पटपरा रोड पे मऊगंज नई गढ़ी के पास पाए जाने से अभियुक्त अतुल सिंह और महेश के मोबाइल पर तत्समय में बातचीत होना प्रमाणित होना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण में जो तथ्य व परिस्थितियां प्रमाणित हुई, वे तथ्य व परिस्थिति संदेह के परे अभियुक्त अतुल सिंह, राजेश व सज्जन सिंह और महेश जायसवाल के द्वारा मृतक रोहिणी प्रसाद के बोलेरो वाहन क्रमांक 100 लूट कारित करने के हेतु से रोहिणी प्रसाद की हत्या किए जाने और रोहिणी प्रसाद की नग लगी चांदी की अंगूठी, सज्जन सिंह की घड़ी एवं लूट के इंगित तथा अभियुक्त गण को दोषी के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किससे बरामद हुई अंगूठी और घड़ी? Now, if Lordship are kind enough to kindly come. If Lordships are kind enough to kindly see to the Caesar memo or the evidence of the investigating officer. हमारे पास से जो document I have, only one rope has been recovered from my possession. And mobile. Whose mobile? Accused का. The mobile belonging to the accused. आपसे सिर्फ मोबाइल मिला है हमसे एक रस्सी, एक मोबाइल। और इन लोगों से, बाकी लोगों से? सर मेरे से 2 मोबाइल हैं, ये दोनों मोबाइल मेरे ही हैं। अंगूठी किससे बरामद हुई? सर ये सज्जन सिंह चौहान और पप्पू से एक घड़ी
एक चांदी की अंगूठी, now the relevant witness is PW2. टू थ्री फोर। नहीं उनके आगे नहीं। मैं उपस्थित सभी आरोपीगण को जानता हूं। मैं मृतक रोहिणी, दिस इज PW2, मृतक रोहिणी प्रसाद चौबे निवासी को पहचानता हूं। अपनी गाड़ी टवेरा नंबर सोनसो को टैक्सी चलाता, सम्राट चौक बुकिंग में खड़ा रहता था। इस प्रकार बोलेरो को भी चलाता था। लगभग एक डेढ़ वर्ष पुरानी गर्मी का समय था। मैं सम्राट चौक सीधी से टैक्सी चौराहे पे पर था। साथ में मृतक रोहिणी प्रसाद के बोलेरो को लेकर खड़ा हुआ था, जिस पर ड्राइवर था तथा 3-4 व्यक्ति भी खड़े थे। दिन के करीब 2 बजे लगभग न्यायालय उपस्थित आरोपीगण में अतुल राजेश सज्जन की ओर से इशारा करते हुए बताया कि उक्त लोग वहां आए। रोहिणी प्रसाद के मऊगंज जाने के लिए वाहन बुक करने की बात हुई तथा 200 रुपए एडवांस रोहिणी को देकर कहकर चले गए, शाम को मऊगंज जाएंगे। ये तीनों व्यक्ति शाम को 6-6:30 बजे आए और बोले कि 2 लोग और आने वाले, तब जाएंगे। कुछ देर बाद वे लोग चले गए। अगले दिन गाड़ी लौटकर नहीं आई, जबकि ले जाने वाले आरोपीगण ने कह गए रहे थे कि सिस्टर को लेकर दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे तक आ जाएंगे, किंतु वाहन वापस नहीं आए। इस प्रकार 3-4 दिन तक गाड़ी वापस नहीं आई। सुहागी पहाड़ी के पर लाश मिली, लेकिन वाहन कानपुर में मिला। पुलिस ने घटनाक्रम वाला समाज चौरा साम्राज्य चौरा नक्शा सोनसो बनाया था। पुलिस ने सीधी जेल में आरोपी में पहचाना था, जिसमें अतुल राज को पहचाना था। शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पीती से इस बात मेरे हस्ताक्षर है। पहचान की कार्रवाई में 15 दिन में रहा था। देन पैरा 7, पुलिस ने पूछताछ कर मेरा बयान लिखा था। मुझे बयान लेने की तारीख, महीना, सन नहीं है। बयान जिस पुलिस वाले ने लिखा उसका नाम नहीं पता, किंतु टीआई थे। रोहिणी के प्रसाद के 2-3 वर्ष पहले क्योंकि गाड़ी चलाता था, रोहिणी के पिता नाम नहीं मालूम, जीवन काल में कभी उनसे नहीं मिला। मैंने पुलिस में लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व गर्मी के समय लेकर गया था, बोलेरो रखा था, दिस इज एन ओमिशन व्हिच हैज बीन रेफर्ड ओवर देयर। एंड देन पैरा 14, पुलिस को उन व्यक्तियों की हाइट व पहने कपड़े के रंग वगैरह नहीं पता था, क्योंकि एक गोरा था, 3 व्यक्ति जींस पैंट पहने थे। शिनाख्ती कार्रवाई लाश मिलने के करीब के 1-1.5 महीने के बाद पहचान की कार्रवाई हुई थी, किंतु उसकी तारीख सन नहीं बता सकता। पुलिस ने मुंशी तिवारी ने शिनाख्ती कार्रवाई कराई थी। यह बात सही है कि मैं आरोपी अतुल राजेश और सज्जन को घटना के पूर्व से नहीं जानता था। The next witness is PW3. Yes. मैं न्यायालय में उपस्थित, ये सिर्फ सज्जन सिंह को पहचानता, बाकियों को नहीं पहचानता है। गवाह नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 9, लास्ट लाइन, यह कहना सही कि आरोपी की शिनाख्ती कार्रवाई थाना कोतवाली सीधी में ही पुलिस के द्वारा कराई गई थी। Yes. The next witness is PW4, that they were seen over there. Again, that identification has been held after an inordinate delay.
पैरा 12 बुकिंग कर गाड़ी ले जाने के तीसरे दिन मैंने राजभर द्विवेदी को बताया था कि 2-3 लड़के रोहिणी वो गाड़ी बुक कर रहे थे, जानता पहचानता हूँ, ले जाने गायब हो जाने की सूचना मिली थी। गाड़ी बुक करने रोहिणी के गायब होने की दूसरी जानकारी मिलने, लाश मिलने के मेरे बयान मैं स्वयं पुलिस वालों को ले आकर नहीं बताया। 3 व्यक्तियों को जानता, गाड़ी बुक कराने आया था। तब मैंने आगामी 2 लोगों को किसी को नहीं बताया था कि इस प्रकार 3 लोग गाड़ी बुक करने आए थे, पहचान कार्रवाई करी थी। When the omissions are there, Yes. these circumstances which are there do not go down to indicate that it would fall in the realm of that the circumstances itself have improved. These circumstances go down to indicate that it is maybe can be there, and there's a possibility that which, and it is not definite that it was the accused who has committed the said offence. Nothing incriminating has been found from the possession of the accused. Approximately 8 years, 8 months that he has served in jail, sir. That's all. That's all, Mr. Dutt. Followed recently in 2023, Live Law Supreme Court, page 41, that's Jasbir and other versus State of Uttarakhand. The last seen doctrine has to be limited application with the time lag between the time the deceased was seen with the accused and the time the murder is narrow. Furthermore, the court should not convict an accused only on the basis of the factum of last seen evidence, This is settled. which settled principle, unless there's any other circumstance also coming over there. That's all. That is it, sir. Anybody else wants to add anything? Yeah. Mr. Jaiswal, जी लार्डशिप, you are for which appellant? महेश जायसवाल लार्डशिप 48.2 Yes. लार्डशिप में मेरा इसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हमें ये जजमेंट के पैरा 4 में लार्डशिप इसने जो प्लान बनाया, मैंने भी जो था लार्डशिप अतुल सिंह उन्होंने प्लान बना के तो हमें बुलाया था लार्डशिप। जजमेंट पैरा 4 क्या लार्डशिप ये तीनों अभियुक्त जो है तो सम्राट चौराहे में पहले ये प्लान बनाते, फिर टैक्सी बुक करते सम्राट चौराहे में, और फिर जो हमें ड्राइवर के लिए कॉल करते हैं। अतुल सिंह जो है हमें ड्राइवर के लिए कॉल करता, फिर मैं रास्ते में मिलता हूँ। मेरा इसमें डायरेक्ट कोई है ना, मेरी कहीं शिनाख्ती हुई है सर, और ड्यूरिंग ट्रायल भी हम ऑन बेल में थे। इसमें लार्डशिप पैरा जजमेंट के पैरा 4 में लार्डशिप सम्राट Yes. सम्राट चौक सीधी टैक्सी स्टैंड जहां से बोलेरो वाहन MP 53 TH 720 बुक करने के लिए गया था, तब नक्शा प्रदर्शन बनाया था, साक्षीकरण लेखबद्ध किए थे। आरोपी का अभिरक्षक पूछताछ करने पर अतुल सिंह द्वारा मेमोरेंडम कथन पिन आफे कर दिया गया था। उसमें उससे कई मोटरसाइकिल साइकिलें की चोरी किया है, 7-8 मोटरसाइकिलें बेचने के लिए अपने घर में छुपा कर रखा है। 16/7/14 को अभियुक्त रज्जू राजेश सज्जन सिंह चौहान के मिलने पर यह प्लान बनाया था, सीधी से कोई गाड़ी बुक करके लेके चलते हैं, रास्ते में ड्राइवर की हत्या करके गाड़ी को बेचकर पैसा कमाते हैं। जी इसमें जजमेंट के पैरा 6 में लाठी इसका सज्जन का मेमोरेंडम है लाठी। You are reading your application or supporting it, or you are reading something from objector's point of view? लार्डशिप इसमें हमें जो मुलजिम का जो मेमोरेंडम उसमें हुआ था उसी के आधार पर हमको मुलजिम बनाए। मैं वहाँ प्लान में नहीं था, ना हमसे कोई शिनाख्ती हुई, हमको कोई शिनाख्ती भी हमें कोई नहीं पहचाना लार्डशिप। हमें सिर्फ ये गाड़ी लेके गए, फिर रास्ते में हमको फोन किया और बुलाया कि हमें ड्राइवर की आवश्यकता है, अगर आप खाली हो तो चलो। तो मैं आया था, रास्ते में मुझे मिले हैं लार्डशिप ये। लास्ट सीन में आ गए ना आप, फिर अगर रास्ते में पहुंच गए तो। लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं है लार्डशिप, हमारा इसमें कहीं इंटेंशन नहीं है कि प्लान बनाने का कि मारने का। हमको सिर्फ ये है कि गाड़ी बोलेरो के ड्राइवर के लिए हमको फोन किया, साहब मैं चला आया, मेरा इंटेंशन नहीं है कुछ। और कुछ कहना है? और लार्डशिप इसमें जो है और हमसे जो जब्ती है लार्डशिप
मोबाइल जिसमें से अतुल सिंह से बात हुई थी। अतुल सिंह मैंने भी अभी अतुल सिंह ही ने हमें बुलाया था लाट सिंह इसमें। दवाई क्या है इसके बारे में आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो तो बता तो दो। अब हमको तो देखना ही नहीं है। और इसमें लाट सिंह PW और क्या बरामदगी हुई है मोबाइल के अलावा? जी लाट सिंह मोबाइल के अलावा क्या बरामद हुआ आपसे? हमसे लाट सिंह मोबाइल जिससे अतुल सिंह से बात हुई थी सिम और एक बोलेरो। वो बोलेरो उसी की है, डिजीज की? जी लाट सिंह डिजीज की बोलेरो है। वो किराए से चलाता वो किराए से चला था। और इसमें जो लाट सिंह जो शिनाख्ती हुई थी PW2 अजीत सिंह, इसमें जो है जजमेंट के पैरा 14 में इसमें मृतक एवं पांच अन्य लोग खड़े थे टैक्सी स्टैंड में। हाजिर आरोपी अतुल सिंह राजेश सज्जन आए थे दूसरे दिन स्टैंड पर। कहाँ से पढ़ रहे हो? जजमेंट का पैरा 14 लाख से जजमेंट का पूरा पैरा 14। यस। इसमें लाठी के आए थे, है ना, सज्जन सिंह आए थे दूसरे दिन स्टैंड पर आए और मऊगंज को लेकर गए थे। मैं तीनों आरोपी गणों को पहचान की। हम उसमें कहीं रोल में नहीं है लाठी, हमारा कोई रोल नहीं है, मेरे कोई शिनाख्ती नहीं, मैं तो गाड़ी बुक करने गया था, हमारा कुछ नहीं लाठी। और ये राजबहोर सिंह जो है व्हीकल बिजनेस है, ये जजमेंट पैरा 15 में है लाठी। सम्राट चौराहे पर मेरे पास मेरी गाड़ी बुक करने के लिए आरोपी सज्जन सिंह आया था। गाड़ी रोहिणी प्रसाद की बोलेरो नंबर दूसरे दिन लेकर गए थे। सज्जन सिंह को शिनाख्ती कार्रवाई पहचाना था और दोनों को पहचान, हमने गाड़ी बुक नहीं कराया लाठी। इसमें जो है इसमें और इसमें PW15 लाठी, इसमें नायब तहसीलदार, इसमें जो है जहाँ जिला जेल में जाकर जो है अतुल सज्जन की शिनाख्ती करें। हम शिनाख्ती भी हमारी नहीं हुई लाट सिंह, हमारा कोई इंटेंशन नहीं लाट सिंह। ये आप बोल चुके हैं एक जी लाट सिंह। और हम लाट सिंह इसमें जो हम जेल में थे ड्यूरिंग ट्रायल 23/4/14 से 10/9/15 तक और अब डेट ऑफ जजमेंट से लाट सिंह। दैट्स ऑल मिस्टर। जी लाट सिंह। यस गवर्नमेंट। प्रोसिक्यूशन स्टोरी पैरा 4 और 5 में जो मेमोरेंडम दिया है उस हिसाब से इस पे डिटेल में आई, पैरा 2 में डिटेल में नहीं आया, अगर आप परमिट करें। पैरा 4 में लो। यस। उक्त मार्ग जांच के दौरान सम्राट चौक सीधी टैक्सी स्टैंड जहां से बोलेरो वाहन क्रमांक 100 को बुक कर ले गया था, नक्शा प्रदर्श P2 अनुसार बनाया था। साक्षी गण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपी गण को परीक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अतुल सिंह द्वारा मेमोरेंडम कथन प्रदर्श P9 इस आशय का दिया गया कि उसने कई मोटरसाइकिलों की चोरी किया है, 7-8 मोटरसाइकिलें बेचने के लिए उसके घर में छुपा कर रखा है। क्या चीज रहे जी, ये क्या चीज पढ़ रहे हैं? Is the reference in judgment of the memorandum? The contents of the memorandum is read. प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या उनके मेमोरेंडम पैरा नंबर Para पैरा 4. 4 माय लॉर्ड। पढ़ने दीजिए उनको अपनी। जी नहीं, आई एम नॉट सेइंग। Yes. दिनांक 16 जुलाई 14 को सह अभियुक्त रज्जू राजेश सज्जन सिंह चौहान के मिलने पर यह प्लान बनाया कि सीधी से कोई गाड़ी बुक करके ले चलते हैं, रास्ते में ड्राइवर की हत्या करके गाड़ी को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तथा उक्त प्लान के अनुसार ही दिनांक 17/7/14 को सम्राट चौक से बोलेरो गाड़ी मऊगंज जाने को कहकर बुक किया तथा ड्राइवर को मारने के लिए हार्डवेयर दुकान से 20 रुपए की रस्सी खरीद लिया। शाम को सज्जन सिंह गाड़ी को लेने चला गया तथा वह रज्जू पुलिस लाइन के पास मिलने के लिए बोलकर पुलिस लाइन सीधी पब्लिक स्कूल के पास चले गए। शाम लगभग 7:30 बजे एक सफेद रंग की बोलेरो क्रमांक 100 को लेकर आया, जिसका ड्राइवर रोहिणी प्रसाद था, जिसमें सभी मऊगंज की तरफ चल दिया। पैरा 5, आरोपी अतुल सिंह द्वारा दिए गए मेमोरेंडम कथन के आगे बताया कि उसके द्वारा ड्राइवर के लिए अपने मोबाइल नंबर 100 से आरोपी महेश जायसवाल बड़ौना के मोबाइल नंबर
सो पर फोन करके बुलाया और सभी लोग मऊगंज के लिए चल दिए। रास्ते में एक दुकान में चाय पिए एवं आरोपी महेश को भी पूरी योजना बताकर शामिल किया गया। उसके बाद सभी लोग नई गढ़ी तरफ चल दिए एवं नई गढ़ी के आगे पुल पार करने के पश्चात सुनसान स्थान पर गांजा पीने के लिए गाड़ी रुकवाया। चारों लोग गांजा पिए तथा वहीं ड्राइवर को मारकर बुलेरो लूटने की बनाई गई योजना के अनुसार अतुल सिंह रस्सी लेकर ड्राइवर के सीट के पीछे बैठा, महेश उसके बगल में बैठा, सज्जन सिंह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा तथा रज्जू ड्राइवर के बगल वाले गेट पर खड़ा हो गया तथा उसी समय योजना अनुसार रस्सी ड्राइवर के गले में डालकर अतुल सिंह ने पीछे खींच लिया। सज्जन सिंह ने ड्राइवर का पैर पकड़ा और रज्जू ड्राइवर के सीने पर चढ़ गया तथा महेश ने ड्राइवर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा बोलेरो वाहन सो को लूट लिया। As per memorandum, they were all present on the spot. My lord. What is the cause of death? जी, As per PM report, cause of death? cause of death हत्यात्मक है मैंने। नहीं, कुछ strangulation या कुछ है कुछ? अब वो जो पैरा में आया है यहाँ पर पैरा 74 के लास्ट के मृतक रोहिणी प्रसाद की मृत्यु चिकित्सीय साक्ष्य हत्यात्मक प्रकृति की होना पाया गया। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं आया कि स्पेसिफिक नहीं है। PM report is exhibit? ये मेरे को नहीं है। Exhibit P20A. Asphyxia है। Asphyxia traumatic. It is evidence of traumatic asphyxia, compression of right chest wall with fracture and 4 ribs, hemothoracic and 2 lacerations on the right lungs present. Yes. Homicidal. Yes. It is homicidal nature. Yes. Now kindly see parrot 31, my lord. Judgment. Yes. Parrot 31, my lord. अजीत सिंह चौहान PW2 ने मृतक व अभियुक्तों को जानना पहचानना बताते हुए साक्ष्य में कथन किया है कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व गर्मी के दिनों में ड्राइवर रोहित प्रसाद सम्राट चौराहा स्थित टैक्सी स्टैंड पर वाहन को लेकर खड़ा था तथा अन्य 4-5 व्यक्ति भी खड़े थे, जिनके करीब 2 बजे हाजिर अदालत आरोपी अतुल, राजेश, सज्जन टैक्सी स्टैंड पर आए और रोहिणी प्रसाद से मऊगंज जाने के लिए बात की और यह कहा कि बहन को लेकर दूसरे दिन 9-10 बजे तक आ जाएंगे तथा 200 रुपए एडवांस ड्राइवर रोहिणी प्रसाद को देते हुए यह कहकर गए कि शाम को मऊगंज जाएंगे। शाम करीब 6-6:30 बजे उक्त आरोपीगण आए और कहा कि 2 व्यक्ति और आने वाले हैं। उसके बाद उक्त आरोपीगण वाहन लेकर चले गए। दूसरे दिन गाड़ी लौटकर नहीं आई। 3-4 दिन तक भी गाड़ी वापस नहीं आई। रोहिणी सोहागी पहाड़ी रीवा में वाहन के ड्राइवर रोहिणी प्रसाद की लाश मिली और उक्त वाहन दूसरे दिन कानपुर में मिला था। साक्षी ने घटनाक्रम वाला स्थल सम्राट चौराहा का नक्शा प्रदर्श P2 पुलिस द्वारा तैयार किया जाना और हस्ताक्षर होना प्रकट किया। मतलब ये जो महेश एक्यूज है वो वहां से गाड़ी लेकर भागा है और कानपुर में पुलिस ट्रैफिक ने उसको पकड़ा और वहां पर उसकी वो गाड़ी वहां से सीज की महेश जायसवाल को। नाउ काइंडली सी पैराग्राफ 32। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि जिला जेल सीधी में अभियुक्त गण की पहचान कार्रवाई कराई गई थी, जिसमें जेल में आरोपी अतुल, राजेश, सज्जन सिंह को 15 अन्य व्यक्तियों के कार्रवाई के दौरान पहचाना था और पहचान की थी तथा अभियुक्तों की शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श P3 के ऐसे भाग पर हस्ताक्षर होना प्रकट किया है। इस साक्षी को यह सुझाव दिए जाने पर कि प्रदर्श P2 के नक्शा मौका पर पुलिस के कहने से दबाव में हस्ताक्षर किए तथा अभियुक्त गण की शिनाख्ती कार्रवाई जेल में नहीं हुई थी, उसे अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तारी के समय दिखा दिया था। अभियुक्त गण को सम्राट चौराहे पर नहीं देखा था। उक्त तथ्यों को अस्वीकार किया है दैट विटनेस।
और इसी तरह PW3 भी ये जो है राजबहोर द्विवेदी PW3 पैरा 34 में बोलता है, साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे जिला जेल सीधी में शिनाख्ती के लिए बुलाया था, जहां करीब 15 लोग लाइन में खड़े थे और उससे यह कहा गया था कि 15 व्यक्तियों के हाथ करके बताना, कुछ कहना नहीं। उसने हरे रंग की चौकड़ी शर्ट पहने हुए आरोपी सज्जन सिंह की पहचान की थी। साक्षी ने पहचान कार्रवाई के समय सुनील पप्पू, एक अन्य व्यक्ति उपस्थित होना तथा पहचान पंचनामा बीचे भाग पर अपने हस्ताक्षर उसने किया था। नाउ काइंडली सी पैरा 35 मतलब सुनील चौहान ने भी अभियुक्त अतुल सिंह, सज्जन सिंह, राजेश सिंह को जानते पहचानते हुए साक्ष्य में कथन किया है कि जुलाई 2014 में सम्राट चौराहा टैक्सी स्टैंड पर दोपहर के समय तीनों आरोपीगण गाड़ी बुक कराने आए थे। उस समय वे अजीत सिंह, राजबहोर और हिंचलाल एक बोलेरो वाहन में बैठे थे। अभियुक्तों ने यह कहा कि मऊगंज जाने के लिए शाम को एक गाड़ी चाहिए और अगले दिन लौट आएंगे। राजबहोर ने कहा कि 1400-1500 लगेंगे। तब उसे 200 रुपये एडवांस देते हुए कहा था कि शाम को 6-7 बजे आएंगे। उसके बाद रोहिणी गुरु वाली अमराया वाली की गाड़ी क्रमांक स्वयं लेकर चले गए। 3 दिन बाद ड्राइवर की लाश मिली। नाउ पैरा 36 साक्षी ने यह भी कथन किया कि रोहिणी गुरु की लाश मिलने के बाद जिला जेल सीधी में उसे शिनाख्ती के लिए बुलाया था। जेल के अंदर दोपहर 2 से 2 बजे 15 लोगों को लाइन में खड़ा किया गया था। जेलर और तहसीलदार द्वारा यह कहा गया कि उन व्यक्तियों में से जिसे पहचानते हो उसे हाथ लगाकर बताना, कुछ कहना नहीं। उसने 15 व्यक्तियों में 3 व्यक्ति हाजिर अदालत आरोपी गण को पहचाना था। साक्षी ने पहचान पंचनामा के प्रदर्श P3 के D से D भाग पर हस्ताक्षर होना भी प्रकट किया है मैंने। नाउ काइंडली सी पैरा 75 मतलब जजमेंट पैरा 75 मतलब These are the findings. अभियुक्तों द्वारा टैक्सी स्टैंड सम्राट चौराहा से को बुक कर ड्राइवर रोहिणी प्रसाद सहित मऊगंज तरफ अभियुक्तों की शिनाख्ती जिला जेल सीडी में साक्षी सुनील सिंह, राजबहोर और अजीत सिंह द्वारा किए जाने तथा मृतक रोहिणी प्रसाद की नग लगी चांदी की अंगूठी, सिटीजन कंपनी की पीले रंग की घड़ी और नायलॉन की रस्सी, मोबाइल उनके दिए गए मेमोरेंडम के आधार पर जब्त किए जाने तथा मृतक की वस्तु की पहचान कार्रवाई मृतक की पत्नी नीलम और भाई अनुसुईया प्रसाद द्वारा किए जाने तथा बोलेरो वाहन अभियुक्त महेश जायसवाल से यातायात पुलिस द्वारा जब्त किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। All right, Mr. Kashyap, you will continue after the break. Right. You need some more time for this? All right, Pardon? continue after. Yes. Yes, Mr. Kashyap. Right. Reading paragraph 75 of the judgment. These are the findings of the learned trial matter. May I read? Mr. Jaiswal, it appears that you are more keen to join the respondents. Please come this side, you are for the appellant. 48.2 lakhs. सर आपको इस बोल रहे हैं, आप इस तरफ आइए, आपका कहना है इस तरफ आइए, आप प्रतिपक्ष नहीं है। Yes. पैरा 75 माइलर अभियुक्तों द्वारा टैक्सी स्टैंड सम्राट चौराहा से बोलेरो क्रमांक MP 53 TA 720 को बुकिंग कर ड्राइवर रोहिणी प्रसाद सहित मऊगल तरफ ले जाने, अभियुक्तों की शिनाख्ती जिला जेल सीधी में साक्षी सुनील सिंह, राजबहोर और अजीत सिंह द्वारा किए जाने तथा मृतक रोहिणी प्रसाद की नग लगी चांदी की अंगूठी, सिटीजन कंपनी की पीले रंग की घड़ी और नायलॉन की रस्सी, मोबाइल उनके दिए गए मेमोरेंडम के आधार पर जब्त किए जाने तथा मृतक की वस्तु की पहचान कार्रवाई मृतक की पत्नी नीलम और भाई अनुसुईया प्रसाद द्वारा किए जाने तथा बोलेरो वाहन अभियुक्त महेश जायसवाल से यातायात पुलिस द्वारा जब्त किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त पक्ष द्वारा मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल लोकेशन और अभियुक्तों की कॉल डिटेल लोकेशन, अभियुक्त अतुल सिंह और आरोपी महेश की मोबाइल पर बातचीत होना,
तथा उनकी मोबाइल की लोकेशन अभियोजन द्वारा बताए अनुसार पाए जाने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। मैं लोग नेक्स्ट पैरा, अभियुक्त पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी अजीत सिंह PW2 ने अपनी साक्ष्य के दौरान स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि अभियुक्त अतुल, राजेश व सज्जन दिन के करीब 2 बजे टैक्सी स्टैंड पर आए थे और मऊगन जाने के लिए बात किए थे। साक्षी राज बहोर PW3 ने भी स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि आरोपी सज्जन सिंह देव स्थान शाम को जाना और सुबह लौट जाने को कहकर बोलेरो गाड़ी बुक करने आया था। 200 रुपये अग्रिम देकर परिचय पत्र मांगने पर मोबाइल नंबर लेकर शाम को फोन नहीं करना प्रकट किया है। उक्त संबंध में भी अभियुक्त पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। नाउ पैरा 77, अभियुक्त महेश जायसवाल से बरामद मोबाइल से अतुल सिंह से बात होने तथा उसके बताए अनुसार कानपुर यातायात पुलिस द्वारा बोलेरो वाहन जब्त किया जाना, अभियुक्त सज्जन सिंह से मृतक की सिटीजन कंपनी की पीले रंग की घड़ी, शादी की अंगूठी बरामद होना, अभियुक्त अतुल सिंह से एक नायलॉन की रस्सी, नोकिया कंपनी की मोबाइल बरामद होना तथा रस्सी आर्टिकल ए पर चमड़ी की अंश की उपस्थिति पाए जाने के संबंध में अभियुक्त पक्ष द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। नेक्स्ट वन, अभियोजन साक्षी अजीत सिंह चौहान PW2 ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि हाजिर अदालत आरोपी अतुल, राजेश व सज्जन टैक्सी स्टैंड पर आए और मऊगन जाने के लिए बात की। 200 रुपये अग्रिम देते हुए कहा कि दूसरे दिन 9-10 बजे लौट आएंगे। शाम करीब 6:30 बजे आरोपीगण आए और यह कहते हुए कि 2 व्यक्ति आने वाले हैं। उसके बाद आरोपीगण वाहन को लेकर चले गए थे। उसके पश्चात मृतक रोहानी प्रसाद के मोबाइल की लोकेशन सीधी पटपरा रोड मऊगंज होते हुए नई गली पर पाई गई, जिसके पश्चात मृतक नहीं मिला। उसकी लाश सोहागी पहाड़ी के पुलिया के नीचे पाई गई। इस प्रकार मृतक जीवित अवस्था में अंतिम बार अभियुक्तों के साथ देखा गया। उसके पश्चात मृतक कहाँ गया, उसकी मृत्यु हुई, यह बताने का भार अभियुक्तों पर ही था, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके पश्चात मृतक किसी और के साथ गया अथवा उसकी मृत्यु कैसे हुई। सोहागी पहाड़ी के पुलिया के नीचे पाई गई लाश कपड़ों की पहचान के आधार पर मृतक रोहिणी प्रसाद की होना प्रमाणित पाई गई है। अभियुक्त महेश जायसवाल सज्जन सिंह, अतुल सिंह की प्रेरणा पर मृतक के द्वारा चालन किए जा रहे बोलेरो वाहन क्रमांक 100 तथा मृतक के चांदी की नग लगी अंगूठी, सिटीजन कंपनी की पीली रंग की घड़ी, रोहिणी प्रसाद की गला दबाकर हत्या करने वाला नायलॉन की रस्सी और मोबाइल जब्त किए गए थे। यह तथ्य भी प्रमाणित हुआ है कि आर्टिकल ए की रस्सी में मानव चमड़ी के अंश होना पाया गया था। अभियुक्तों के पास मृतक की चांदी की अंगूठी, सिटीजन कंपनी की घड़ी और उनके बतानुसार कानपुर में मृतक द्वारा चालन किए जाने वाले बोलेरो वाहन कैसे आया, उक्त संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। और निम्न परिस्थितियां संदेह से प्रमाणित हुई है। माननीय, ये 5 परिस्थितियां भी माननीय ट्रायल कोर्ट ने दी हुई। पहला, सोहागी पहाड़ी पुलिया के ये नीचे पढ़ दिया था इन्होंने, पूरा पढ़ दिया। That has been read out. Yes, ma'am. So these are the circumstances against him, my lord, and these circumstances loudly speaking against them, my lord. So their suspension may or not least. That's all. In reply, a very short reply. Yes. My lord, everything, whatever has been read over, starts from the statement of the co-accused. Statement of the accused and the co-accused and the memorandum is the basic thing. Now, the learned trial judge, where he has dealt with this particular aspect, that he has recorded down the entire contents of the memorandum, which the Supreme Court says that this should not even be referred, only that admissible portion should be referred. For that, Lordship may be kind enough to kindly have this 2020-21, Volume 10, Supreme Court Cases 598, and the relevant would be paragraph number 8. Now, this was the guidelines which were laid down by the Apex Court pertaining to as to how in the trial court the evidences should be got recorded, and that is 2021-10 Supreme Court Cases 598, Criminal Trials Guidelines regarding inadequacies and deficiencies and reference versus State of Andhra Pradesh, and paragraph number 8 would be
The reference would be, sir, it is only the presiding officer, this is paragraph number 11, the presiding officer shall ensure that only admissible portion of section 8 or section 27 of the Evidence Act is marked and such portion alone is extracted on a separate sheet and marked and given as an exhibit number. Now he over here, then my lords, I would bring before launches this 2023 Rahul versus NCT Delhi, paragraph number 30. What is the portion which would be admissible is the only portion that where it leads to the discovery of a particular fact. Rest of the would be inadmissible over there because it would be hit by section 25 and 26 of the Evidence Act. My lord, if the memorandum goes seen on the bus stand along with the other person where they had gone for a particular booking, and those persons say, one of the persons says he only identified one person, and then the identification has taken place after 1.5 years, after 1.5 months. The report of missing was lodged on 19th, but they say that from 17th the person had gone missing. There were certain injuries on the body, that those were the injuries, the death was homicidal. But what I humbly submit, my lord, the factum of last seen by own self would not be sufficient to hold that it was the accused who has committed murder. It may give rise to suspicion, but suspicion, however strong, cannot take place of legal proof. And one more aspect that Lordship may be kind to kindly consider in this case is that these persons have served approximately about 8 years, 8 months, my lords, in jail. This is an appeal of the year 2020. Yes. That's all. That's it. All right, we'll consider. Lordship, just one thing. Exhibit P14 is my, Exhibit P14 is the recovery of motorcycle from me. P13. P14 is the recovery of motorcycle from me. How this motorcycle has been used in the crime, not explained, but only motorcycle and mobile, both how they are used. And exhibit, Lordship, This you have already argued, madam. yes, but P14, Lordship. And P19 is my arrest. That I've argued, but exhibit P19 is my arrest. मेरे ग्राम नेगुड़ा से मेरे को जाके अरेस्ट किया, लॉर्डशिप. आई एम 23 years old, BSc first year student, and I've been implicated like this, lordship. That's all. ट्रायल कोर्ट का तो मैंने वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ दिया था, that it is the finding of the trial court itself that I was only standing and did not stop Atul and Mahesh to do any crime, Atul and Sergeant to do any That crime. is the paragraph Paragraph 80, lordship. 80. मेरे सिर्फ वहां पर मौजूद ही थी, लॉर्डशिप. पेज नंबर 47 ऑफ माय. अभियुक्त अतुल सिंह के साथ ही थे. घटना के समय शेष अभियुक्तगण अभियुक्त अतुल सिंह के साथ ही थे, परंतु उनके द्वारा अभियुक्त अतुल सिंह कृत्य करने से रोकने का प्रयास नहीं किया, और उसने जब ये किया तो उसको छुपाने के लिए उसको मदद की. बट देयर इज नो एविडेंस टू दिस इफेक्ट. दिस इज ओनली सस्पिशन. This is assumption of the trial court that they might not have supported him. Whether I was there or not, whether I continued there or not, that is not there. अभियुक्त सहायता की गई और इसके मृतक रोहिणी प्रसाद की हत्या की जानकारी उनको थी और अन्य किसी को न देने और शिकायत न करने के. ओनली दिस इज द एलिगेशन अगेंस्ट मी. ओनली एलिगेशन अगेंस्ट मी इज कि हमने रोका नहीं. Yes. That's all. यस लॉर्डशिप. दैट इज फॉर राजेश सिंह. You also want to say something? लॉर्डशिप, इसमें हमारा इंटेंशन नहीं था, हम ड्राइवर थे, हमें ड्राइवर का कह काम चुके हैं बारंबार. हम मेंस आप कह चुके हैं ये बात तो. जी लॉर्डशिप. और हम ड्यूरिंग ट्रायल आल बिल में थे लॉर्डशिप.